Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. So, as you all know, that we have completed explanation of chapter number 12, Beyond Earth, from our class 6th Science NCERT book Curiosity. As you are aware, this is the last lesson from our book Curiosity. I have already uploaded explanation of this lesson in part 1 and part 2, and today we will proceed further with the summary and the question answers of this lesson. So let's get started with the summary and the question answer of this lesson. Summary key points. This lesson, as you know, it includes or tells us about what is beyond Earth, that is about stars, various constellations, and we have learned about solar system, comets, asteroids. Now today we will understand the key points or the summary of this lesson. The sky is divided into regions called constellations, which include group of stars that appear to form pattern. तो स्काई को डिवाइड किया गया रीजन्स में, जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन बेसिकली होता क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म, जो पैटर्न फॉर्म करते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. The pole star appears stationary in north direction, which helps in locating the north direction in the northern hemisphere. पोल स्टार जो है वो स्टेशनरी है, मतलब फिक्स्ड है एक पोजीशन पे नॉर्थ डायरेक्शन में, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये एक नॉर्थ डायरेक्शन है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. द सन इज अ स्टार विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. सन जो है वो एक स्टार है जो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट हमें देता है. इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी ऑन अर्थ. A planet is a large, nearly spherical object that revolves around the sun. Planet जो है एक large, बहुत बड़ा spherical circle shape में एक object है जो sun के आसपास revolve करते हैं. The 8 planets in order of their increasing distance from the sun. 8 planets जो है वो कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन नियरली 1 ईयर. एक साल में अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता रहता है. इट टेक्स 1 ईयर. ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज सैटेलाइट. ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट्स ऑब्जेक्ट्स जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट. द मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. The moon revolves around the earth in nearly 27 days. So moon जो है वो revolve करता है अर्थ के आसपास 27 days में. The sun, 8 planets, their moons and many smaller objects including asteroids and comets together form the solar system. So sun, 8 planets, उसके उनके moons, smaller objects, asteroid and comets जो है वो together क्या form करते हैं? solar system. Our solar system is a part of Milky Way galaxy. Solar system किसका part है? Milky Way galaxy. So let us enhance our learning. So we are starting with the question answers of this lesson, that is the back exercise. Let us come to question number 1. Match the column. Column number 1 and column number 2. Now here it is written satellite of Earth. अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? सो यू हैव टू राइट हियर मून. रेड प्लैनेट, विच इज द रेड प्लैनेट? मार्स. देन कॉन्स्टिलेशन ओरियन. प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एज इवनिंग स्टार. ऐसा प्लैनेट जिसे इवनिंग स्टार बोलते हैं वो क्या है? कौन सा है? दैट इज कॉल्ड वीनस. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. सेकेंड क्वेश्चन. Solve the following riddle. My first alphabet is in man but not in can. अब यहाँ पर आप देखो अल्फाबेट्स जो हमें दिए हैं मैन में, यहाँ पर MAN दिया हुआ है और यहाँ CAN दिया है. तो यहाँ से हम एक अल्फाबेट निकालेंगे जो मैन में है पर कैन में नहीं है. तो AN तो सिमिलर है बट M जो है वो डिफरेंट है और वो मैन में है. तो यहाँ से हम निकालेंगे M. My second alphabet is in A's and also in fan.
सेकेंड अल्फाबेट जो है वो एस में भी है और फैन में भी है। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा है? देखो यहाँ पे ए दोनों में दिया हुआ है तो ए कॉमन है, तो यहाँ से एम निकालेंगे, यहाँ से ए निकालेंगे। माई थर्ड अल्फाबेट इज इन रैट बट नॉट इन कैट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए टी तो कॉमन है, बट यहाँ पे आर जो है फर्स्ट, इसमें जो थर्ड अल्फाबेट है वो है आर। माई फोर्थ अल्फाबेट इज इन सन बट नॉट इन फन। तो सन में है यू एन तो कॉमन है, तो सन में है तो वो एस हो गया। आई एम अ प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन। तो यहाँ से हमने निकाला मार्स, इसका आंसर होगा मार्स। मेक टू सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है सिरियस, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और प्लूटो। सो सीरियस, क्योंकि स्टार है वो, इसलिए वो जो है वो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट और ऑफ द सन? जुपिटर, नेपट्यून, प्लूटो और सैटर्न। तो हमने क्लियरली पढ़ा था कि प्लूटो जो है वो ड्राफ्ट प्लैनेट में आता है, इट इज नॉट द प्लैनेट ऑफ द सन। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, द पोल स्टार और सीरियस? ब्राइटेस्ट कौन सा है? सीरियस। An artist representation of the solar system is given in figure 12.12. This is the order of planets correct? If not, write the correct order. ठीक है, आपको इसमें करेक्ट ऑर्डर जो है वो प्लैनेट्स का लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा मरकरी, फिर आएगा वीनस, फिर आएगा अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यू हैव टू राइट इन दिस वे। Question number 7. A portion of night sky is with star is shown in figure. Look at them, the Big Dipper and the Little Dipper. Draw the lines to connect the stars for these patterns and label them. Also identify and label the pole star. You may refer figure 12.4 for help. देखो यहाँ पर जो stars बने हैं ना, यहाँ पे मैंने इमेज बना दी है। ये बनी हुई है बिग डिपर और ये बना है लिटिल डिपर, एंड दिस इज द पोल स्टार। सी, तो इस तरीके की इमेज आपने बनानी है। ये है बिग डिपर, देन दिस इज लिटिल डिपर, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई पोल स्टार, और ये है पोल स्टार। क्वेश्चन नंबर 8. A portion of the night sky is shown in figure 12.14. Draw lines to connect the star for Orion and label the star Sirius. You may also refer to figure 12.3. देखो ओरियन कॉन्स्टिलेशन बनानी है आपने। यहाँ पे ये हंटर वाली कॉन्स्टिलेशन है, ये हमने ओरियन बना दी, और यहाँ पे सीरियस फाइंड करना है। ठीक है। You can see stars fading away at dawn and appearing at dusk. During the day we do not see stars. Why? अब हमें डे टाइम में क्यों नजर नहीं आते स्टार? बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन. ड्यूरिंग day the sunlight outshines the stars and make them invisible to our eyes. So sun की जो लाइट होती है वो स्टार्स को छुपा देती है, और इसीलिए ये हमारे लिए इनविजिबल हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर 3-4 times at an interval of 2 to 3 hours. Also try to locate the pole star each time. Does the big dipper appears to move? Draw a rough sketch to illustrate this, mentioning the time in each case. आपने क्या करना है? क्लियर स्काई पे देखना है बिग डिपर को 3-4 टाइम्स 2-3 घंटे के बाद, और आपने लोकेट करना है पोल स्टार को। क्या आपको ये फील होता है कि बिग डिपर जो है वो मूव कर रहा है? यस। मूव क्यों करेगा वो? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसी को आपने एक रफ स्केच बना के इलस्ट्रेट करना है। ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस lessons exercise. I hope you have understood all the questions properly. If you have not watched part 1, part 2 of this lesson, that is the explanation, please do watch it. Do subscribe my channel and like my videos. Now I'll meet you soon with the important points of this lesson.